چشم ما روشن دل ما شاد، خوش آمدید خوش آمدید۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ عزیز بھائی صدر پرابوو سوبیانتو کو پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ بامقصد اور تعمیری ملاقاتوں کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر بیان۔ Assalamu alaikum, sir. The nation of Pakistan welcomes His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. On behalf of the worthy Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special felicitation to our esteemed guest and present a flight of 3 JWST. پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے انڈونیشیا کے صدر کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ پاک فضائیہ کے 6 JF-17 جنگی طیاروں کی معزز مہمان کو فضائی سلامی۔ انڈونیشیا کے صدر کا پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور پاکستان کی عوام سے اظہار تشکر، شاندار استقبال، دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات، باہمی احترام، پائیدار دوستی اور بھائی چارے کا ثبوت۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ افغان طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علاقائی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسروں سے تاریخی خطاب۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے کثیر و جہتی آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کرنا ضروری ہے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب اہم قدم ہے۔ آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھیں گے۔ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر۔ اور مضبوطی کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ بلا جواز اشتعال انگیزیوں کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ برداشت، سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ہم خطے میں امن مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کے بعد مسلح افواج کے کمانڈ سٹرکچر میں اہم تنظیمی تبدیلی کا آغاز۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے اعزاز میں پروقار تقریب۔ تینوں مسلح افواج کے دستے نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی کو جنرل سلامی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصف منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت اعلیٰ عسکری حکام کی بھی شرکت۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फ्राहमी में दरपेश मसाइल खत्म करने के लिए जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी को बिला तात्तुल और मुनासिब कीमत पर बिजली की फ्राहमी के मंसूबों पर मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें, वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से लाया अमल पर इजलास। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से तजावीज़ पेश। इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़। कौमी अहमियत के अहम मंसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील तरजीह है। तरक्याती मंसूबों के मुख्तलिफ मराहिल में इस्लाहात के हवाले से जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। तमाम शोबों में जारी ताउन का तफसीली जायजा। शराकतदारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे, नायब वज़ीर आज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और सीसीटीवी लाजमी करार। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फर्जी मशक़ें कराने की हिदायत। पंजाब भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए। घरों और मार्केट्स में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी, मरियम नवाज। चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती। जलजला, सैलाब, नागहानी आफात हों या जाहरियत, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गहरे सकाफती, समाजी और तारीखी रिश्तों पर मबनी है। हालिया तबाहकुन सैलाबों के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए फौरी और मौसर इमदाद दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का सबूत है। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हमारे पास गैस का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। आज भी जो टोटल डिमांड है 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर घरेलू सार्फिन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रवां साल गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी नजर आएगी। बलूचिस्तान में गैस की जरूरियात को पूरा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से गैस फराहम कर रहे हैं। जहां गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही पर फौरन मामला हल किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 2 उम्मीदवारों राना एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आबिद शेर अली पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं। आबिद शेर अली बतौर सेनेटर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तामीर और तरक्की और अवामी खिदमत में भरपूर किरदार अदा करेंगे, वज़ीर आज़म। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए, वरना आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले रियासत फिर सियासत होगी। हर धर्मी की रविश हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब किसी सूरत कोई ड्रामा नहीं चलेगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पर फर्ज। इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेशावर जलसे में गालम गलोच और तनकीद के अलावा कुछ नहीं था। कब तक इनकी बातों और तनकीद को नजरअंदाज किया जाएगा? पीटीआई ने कभी इसराइल भारत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। पीटीआई ने हमेशा दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखा। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी।
بانی پی ٹی آئی کی بد تہذیبی اور انا 2014 سے دیکھ رہے ہیں۔ ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ سرخ لکیر عبور کرنے والے کی سزا آئین میں درج ہے۔ قومی سلامتی پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے ریاست سختی سے نمٹنا جانتی ہے۔ ملک دشمنی اور غداری کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب۔ بھگوڑے عادل راجہ کے گرد، قانونی گھیرا مزید تنگ۔ عادل راجہ کے خلاف لندن ہائی کورٹ کا سخت فیصلہ۔ عادل راجہ اپنے جھوٹے دعووں پر عام معافی مانگے جو اس کے تمام اکاؤنٹس پر 28 دن تک شائع رہیں گے۔ عادل راجہ مدعی مقدمہ کو 50,000 پاؤنڈ ڈیمیج چارجز اور 2,60,000 پاؤنڈ مقدمے کے اخراجات 22 دسمبر تک جمع کرائے۔ عادل راجہ مستقبل میں تخریبی حرکتوں سے دور رہے۔ لندن ہائی کورٹ۔ بے بنیاد اور جھوٹے مواد کے باعث عدالت نے عادل راجہ کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا۔ لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور بڑی تباہی سے بچ گئے۔ بھارتی دہشت گرد ایجنسی را کے 12 دہشت گرد گرفتار۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، آئی ڈی بم اور نقدی برآمد۔ دہشت گردوں سے حساس مقامات اور حساس اداروں کی تصاویر، ویڈیو لوکیشن بھی برآمد۔ فیس بک آئی ڈی کی مدد سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان کے گرفتار دہشت گردوں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب۔ جابر طالبان کے خلاف عالمی برادری کا واضح موقف۔ آسٹریلیا کا افغانستان کے خلاف خود مختار پابندیوں کے فریم ورک کا نفاذ۔ سفاک طالبان کی انسانی حقوق خلاف ورزیوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کے باعث عالمی برادری کے دو ٹوک اقدامات۔ افغانستان کو اسلحہ اور متعلقہ مواد یا خدمات فراہم کرنے پر مکمل پابندی عائد۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر۔ ہزاروں کشمیری مختلف بھارتی جیلوں میں قید اور نظر بند۔ کشمیری مسلمان اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پرامن اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت جابرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کو منصفانہ جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارتی فوج کا ناقص جنگی معیار بے نقاب۔ بھارتی فضائیہ کی ناکامی کے بعد بھارتی فوجی ٹینک بھی ناکارہ نکلے۔ معمول کی فوجی مشقوں میں بار بار حادثات نے بھارتی افواج کی دفاعی صلاحیت پر سوالات اٹھا دیے۔ راجستھان میں فوجی مشق کے دوران فوجی ٹینک نہر میں ڈوب گیا۔ ایک فوجی اہلکار ہلاک، 2 شدید زخمی۔ متکبر مودی اور اس کی فوج کی تربیتی خامیوں کا پردہ چاک۔ فاشسٹ مودی کی ناقص پالیسیز، بھارتی فضائی نظام مفلوج۔ بحران حکومت کے اجارہ داری ماڈل کا نتیجہ۔ خمیازہ ہمیشہ عام بھارتیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی۔ بحران بی جے پی حکومت کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو کی تباہی پر سیاسی رہنماؤں کی شدید تنقید۔ پاکستان سپر لیگ کا لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں روڈ شو۔ پی ایس ایل کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا ہمارا ویژن ہے۔ 6 جنوری کو 2 نئی ٹیموں کے لیے کھلی بولی ہوگی۔ پی ایس ایل کا مقصد مقامی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، رمیز راجہ، وسیم اکرم اور سلمان نصیر کی پینل گفتگو۔ پی ایس ایل سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا۔ پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین موقع ملتا ہے۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بابر اعظم، حارث رؤف، صاحبزادہ فرحان کی وسیم اکرم کے ساتھ روڈ شو میں پینل گفتگو۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا جیولن تھرو میں طلائی تمغہ۔
81.81 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। चांदी का तमगा यासिर सुल्तान के नाम रहा। इब्रार अली की तीसरी पोजीशन। और 35वीं नेशनल गेम्स मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी के 10 सोने, 7 चांदी और 2 कांसी के तमगों के साथ बरतरी बरकरार। पाकिस्तान ने भी 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ दूसरे और पीएएफ 2 चांदी, 3 कांसी के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। एक तारीखी और अहम सिफारती पेशरफ्त। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। आला सतह वफ़द भी इंडोनेशिया के सदर के हमरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सोबियांतो 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे तो नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर प्रोबोवो सोबियांतो को रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना के अरकान और आला हुकाम से तारुफ कराया गया। इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सोबियांतो का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। दौरे के दौरान सदर प्रोबोवो सोबियांतो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। उनकी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ 2 तरफा उमूर पर बातचीत भी होगी, जिसमें बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सदर प्रोबोवो सोबियांतो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। मुतादिद नए इकदामात पर इत्तफाक और कई मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान खसूसी अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को नई जहत देने, शराकतदारी में वुसअत और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो को पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया मुश्तरका तारीख, गहरे सकाफती रिश्तों और बाहमी एहतराम और यकजहती पर मबनी दोस्ती के मजबूत बंधन में जुड़े हैं। दोनों मुल्कों की दरीना शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया के सदर के साथ बामकसद और तामीरी मुलाकातों का मुंतज़िर हों। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सोबियांतो का पाक फ़ज़ाइया की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारों ने उसे हिफाजती हिसार में ले लिया और मुनफरिद अंदाज में खुश आमदीद कहा। JF-17 तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें सलामी पेश की। सदर प्राबोवो सोबियांतो ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल दोनों मुल्कों की बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मज़हर है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में ब्रदर मुल्कों को फ़ज़ाई सलामी पेश करना जज्बा खैर सगाली की रिवायात का अक्कास है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार
اور شدید ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں تینوں مسلح افواج کے افسروں سے خطاب میں افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ تفصیل بتائیں گے یاسر حسین۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بطور چیف آف ڈیفنس فورسز اپنے پہلے تاریخی خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کو پاکستان کی خود مختاری اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ علاقائی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بڑھتے ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کرنا ضروری ہے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھیں گے۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اس سے پہلے GHQ راولپنڈی میں اہم اور تاریخی عسکری تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں تینوں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر اعزازی دستے نے سلامی دی۔ سمندروں کے محافظ پاک بحریہ اور فضائی سرحدوں پر ہر لمحہ نظر رکھنے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سربراہوں کی موجودگی میں فیلڈ مارشل کو سلامی پیش کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ برداشت، سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ ہم خطے میں تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک تھی۔ یہ تقریب چیف آف ڈیفنس فورسز کو صرف سلامی نہیں بلکہ پاکستان کے دفاع، اتحاد اور مضبوط عسکری قیادت کا بھرپور مظہر تھی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل مناسب قیمت اور قابل بھروسہ بجلی کی فراہمی کے منصوبوں پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں۔ وزیر اعظم نے 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ سے گلگت بلتستان میں ماحولیاتی اعتبار سے صاف بجلی کی بلا تعطل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ منصوبے پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کی فلاح و بہبود
बहबूद और मौशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुल्की माशी सरगर्मी और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने में सबब बनेगी। बिजली की बिला तातुल फराहमी और दीगर सहूलियात से गवादर पोर्ट दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह मुस्तकबिल में मौशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मौशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के मसाइल को हल करने के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में बनने वाली कमेटी और वज़ारत तवानाई के सिफारिशात और इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तैयार करदा जामे हिकमत अमली में शामिल फौरी, कलील और तवील मुद्दती मनसूबों पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सनतों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और आलमी मयार के मुताबिक किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि गवादर में बिजली की फराहमी में तातुल को 42% कम किया जा चुका है। कलील मुद्दती प्रोजेक्ट्स में आइंदा 8 से 12 माह में बड़े सरकारी इदारों में 9.7 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी नस्ब की जाएगी। गवादर के तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स में 40 मेगावाट का मंसूबा मुस्तहकम बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए नस्ब किया जाएगा। इजलास को यह भी बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसमें 18 मेगावाट छतों पर सोलर प्रोग्राम और 82 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर पर मुश्तमिल है। छतों और यूटिलिटी सतह पर सोलर प्रोजेक्ट को 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट से सालाना 1 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी अहमियत के अहम मंसूबों की शफाफियत के साथ बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से लाहे अमल पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों के मुख्तलिफ मराहिल में इस्लाहात के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में इस्लाहात के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के स्टेक होल्डर्स की स्टेयरिंग कमेटी की सदारत वो खुद करेंगे। तरक्याती मंसूबों के हवाले से इस्लाहात में मुआवनत पर वज़ीर आज़म ने शराकतदारों, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। इजलास को आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से तरक्याती मंसूबों के बरवक्त तकमील के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास को बताया गया कि तरक्याती मंसूबों के लिए इंसानी वसाइल को मंसूबों के मकासद के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। बरवक्त प्रोक्योरमेंट ना होना तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर की बुनियादी वजह है। ई प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट रेडीनेस की सहूलियात की फराहमी से प्रोक्योरमेंट को तेज़ रफ्तार बनाया जा सकता है। इजलास में इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की भी तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न को शोबा तिब में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी फिजिशियंस की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से मसाइल के सद्देबाब की हिदायत की है। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान के सेहत के शोबे की तरक्की पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स के वफ़द के साथ मिलकर पाकिस्तान के सूबा शहद में सरमायाकारी का एक काबिल अमल रोड मैप बनाकर पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आबिद शेर अली को सेनेट इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बदौलत हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। आबिद शेर अली पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं। उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में अवामी खिदमत से अपना नाम बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबिद शेर अली बतौर सेनेटर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की लाजवाल क़यादत में मुल्क की तामीर और तरक्की और अवामी खिदमत के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने 2026 में पाकिस्तान की मेज़बानी में ख़वातीन के हवाले से OIC की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए OIC सेक्रेटेरिएट और मुतल्लिका वज़ारतों के दरमियान करीबी राबते पर जोर दिया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की बाइख्तियारी और सिनफी मसावात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद ख़वातीन के मसाइल को OIC फ्रेमवर्क में उजागर करने के लिए मुल्की अज़्म का इजहार है।
His Excellency Mia Mohammad Shehbaz Sharif, Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome to the reception of 54th anniversary of the United Arab Emirates. To deliver a welcome speech, I would like to invite His Excellency Salim Mohammad Al-Zabi, the Ambassador of the United Arab Emirates. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Mian Mohammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my great pleasure to welcome you all this evening as we celebrate the 54th Union Day of the United Arab Emirates, a day that commemorates the historic unification of our nation in 1971 under the visionary leadership of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. May Allah have mercy on him. This year's theme, United, reflects the values that have defined our journey for more than 5 decades: unity, cohesion, tolerance, and shared purpose. These principles transformed the Union into a remarkable model of development and progress. As we gather here today in Islamabad, we are reminded of the strong bonds that unite our two nations. The UAE and Pakistan share a deep-rooted friendship built on mutual respect, shared values, and a common vision for regional peace and development. Looking ahead, the UAE is committed further strengthening its partnership with Pakistan. We see tremendous potential for collaboration in various sectors, including renewable energy, artificial intelligence, sustainability, and economic diversification. Together, we can create new opportunities for our youth and drive forward innovations that benefit not only our two countries, but the wider region as well. In this spirit, we reaffirm our determination to broaden the horizon of our economic relations in a manner that truly reflects the depth and strength of the historic ties between our nations. As we celebrate these historic occasions, let us renew our commitment to the values that have guided our nations: unity, determination, and compassion. I would like to express my gratitude to the government and the people of Pakistan for their warm hospitality, friendship, and continued support. May the bond between the UAE and Pakistan continue to grow stronger for generations to come. May our nation prosper, and may peace and harmony. Thank you and welcome once again. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now I'm honored to invite His Excellency Mia Mohammad Shehbaz Sharif, Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for his valuable remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency Muhammad Salim Al-Bawab Al-Zabi, Ambassador of the United Arab Emirates to Pakistan, Deputy Prime Minister Ishaq Dar, Honorable Federal Ministers, Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, Honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. Your Excellency, it is with great pleasure that I join you and honorable guests in the celebration of the 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad. And on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates, our brothers and sisters. My heartiest felicitation to my dear brother,
His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, as well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai. Ladies and gentlemen, my earliest memories of the UAE are of a land that believed in possibilities long before they became realities. Witnessing the UAE's remarkable journey as it attains new heights of progress fills all of us with profound admiration for not only His Highness, my very dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, but his great late father, Sheikh Zayed, may Allah grant, place him in Jannah, who was the real architect of this great brotherhood, fraternity, and friendship between Pakistan and UAE. My friends, today we also honor the enduring spirit of brotherhood that binds our two nations. Pakistan takes great pride in its strategic partnership with the UAE, which continues to deepen across nearly every domain of life. Our economic partnership stands as a shining example of this collaboration, with the UAE lending critical support to our economy. Excellency, with Pakistan's economy stabilizing, we stand ready to welcome Emirati investment in renewable energy, AI, fintech, agriculture, and minerals. Ladies and gentlemen, at the heart of our enduring relationship lie our people, the 1.8 million Pakistanis who consider the UAE as their second home and who contribute tirelessly to its economic progress across diverse sectors. And they are obviously making great contributions in nation-building efforts in UAE, making all Pakistanis very proud of them. Today, the UAE flies not only on its skyline of achievements, but also over the hearts of millions who admire this nation's vision under the dynamic leadership of my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. May the coming years bring even deeper cooperation, greater prosperity, and enduring peace to Pakistan, the UAE, and the wider region. Thank you all. Eid al-Ittihad Mubarak. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. I would like to invite the Ambassador of United Arab Emirates and His Excellency, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to join for cake cutting. नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को 54वें कौमी दिन पर पाकिस्तान की आवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। पाकिस्तान को UAE के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती बाहमी इत्तेहाद और मजबूत ताल्लुकात पर मबनी है। ये ताल्लुकात 5 दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस इजलास में तमाम शोबों में जारी ताउन का जामे जायजा लिया गया। कमेटी ने दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकत दारी को मजीद उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह को शाया निशा तरीके से मनाया जाएगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूलों समेत पंजाब के तमाम तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV कैमरे लाजमी करार देते हुए पंजाब पुलिस को तालीमी इदारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फर्जी मशक़ें कराने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर में कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि वो पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक अनथक कोशिशें जारी रखेंगी। वज़ीर आला ने घरों और मार्केट्स में लगे हुए CCTV कैमरों को सेफ सिटी अथॉरिटी के निज़ाम से मुंसलिक करने का भी हुक्म दिया और कहा कि अमन व अमान के फ़रोग के लिए शहरियों की जानिब से भी मुआवनत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि पंजाब में दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर्स और दूसरे अमले की रजिस्ट्रेशन की जाए। पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर किरदार अदा करे। वज़ीर आला ने सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की भी हिदायत की और कहा कि समाजी दुश्मन अनासर की बर वक्त निशानदही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए उनके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाने के लिए पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों से राब्तों का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को मशीनरी जज्बे से काम जारी रखने का हिदायत की। बलोचिस्तान में माहौलियाती लचक के जरिए पायदार तरक्की के मौजू पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बारिश के पानी के ज़खायर, मौसर आपाशी और ज़ेर ज़मीन पानी की रिचार्जिंग मंसूबों से सूबा अपने हयातियाती तनव्वुर की तरफ लौट रहा है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान तवील खुश्क साली और सैलाब की सूरत में मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमट रहा है। Our province has made significant progress in climate resilience. Our climate change policy provides a roadmap of adaptation and mitigation efforts, focusing on key sectors such as energy, transport, agriculture and water. तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि हमें आलमी क्लाइमेट फ्रेमवर्क को देकर आगे बढ़ना है। Government is making every possible effort to mitigate the effects of climate change, strengthen the adaptation strategies and represent Pakistan's voice forcefully on international platforms. तकरीब में बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा, सेक्रेटरीज के अलावा बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और डोनर एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़लज़ला, सैलाब या किसी भी किस्म की अंदरूनी और बैरूनी आफत हो या जाहरियत, तारीख शाहिद है कि आयरन ब्रदर चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम पाकिस्तान में 2025 के सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लासवाल है। रिपोर्ट करेंगे किज़ा नकवी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान के लिए एक कीमती कौमी असासा और तारीखी विरासत है जो वक्त की हर आजमाइश में कामयाब रही है। पाक चीन ताल्लुकात महज सिफारती रवाबित तक महदूद नहीं बल्कि दोनों मुमालिक के अवाम के दरमियान गहरे सकाफती, समाजी और तारीखी रिश्तों पर मबनी है। Any inheritance which is beyond value, which is beyond words, is something that we guard, we protect very jealously, and something that we cherish and hold very dear, and that is my dear friends Pak-China friendship, which really means a great deal to us. My heartfelt gratitude for helping us out in this time when we had devastating floods, and I would also like to highlight that whenever we've been faced with such dire situation, China has always reached out, China has always been there, and China is a friend that we can always count on, a reliable friend. वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कार्बन इखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुमालिक में शामिल है। वजीर इत्तलात ने पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि इन इदारों ने अपनी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारियों के तहत पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं।
उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीनी क़यादत, चीनी मिशन और चीनी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान भी चीन और अपने चीनी दोस्तों के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय हुकूमत जाबिराना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों को अपनी मुनसिफाना जद्दोजहद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकती। KMS के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने मकबूजा इलाके में भारत की तरफ से काले कवानीन के तहत सियासी और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं की तवील नजरबंदी का हवाला देते हुए इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज करने पर अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी आलमी ताकतों को तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा कि जनूबी एशिया में कशीदगी को कम करने के लिए कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के हवाले से अपने सख्त गिर रवैये पर नजरसानी करे और जुल्म और जबर के बजाय मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करे। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों में बढ़ते हुए एहसास महरूमी को उजागर करते हुए इज़्ज़त और वक़ार की बहाली के लिए बामानी बातचीत पर जोर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के साबिक कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने कहा कि आलमी बरादरी दुनिया भर में जाबिर हुकूमतों के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि हज़ारों कश्मीरी भारत के मुख्तलिफ जेलों में सिर्फ इसलिए बंद हैं कि वो कश्मीरी मुसलमान हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए पुरअमन और कानूनी जदोजहद कर रहे हैं। फारूक रहमानी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ज़्यादा फौजी जमाव वाला इलाका है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो लेह, गिलगित, बाबूसर -6, स्कर्दू -4, बगरोड, गोपिस -3 और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खेल में खुश आमदीद। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो मुनक्किद किया गया। रोड शो में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी समेत मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स ने शिरकत की। तफसील जानिए ज़ीशान कयूम से। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीख रकम पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो मुनक्किद किया गया। तकरीब के आगाज में लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि लॉर्ड्स में PSL रोड शो का इनेकाद तारीखी लम्हा है। खेल सिफारतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, साबिक चेयरमैन रमीज राजा और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PSL सलमान नसीर के हमरा पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाना हमारा मकसद है। लीग में सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फायदा मिलता है। PSL में नई बिड शफाफ और ओपन होगी। From this PSL 11, any team who will be winning this tournament will be getting $500,000. The number 2 team will be getting $300,000, and the team who will be spending the most on the development, they will also be getting $200,000. चेयरमैन PCB ने कहा कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। हर स्टेडियम में शायकीन के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि PSL नौजवान खिलाड़ियों को आलमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने और तजुर्बात से सीखने का मौका फराहम करती है। The best about PSL these days is that we are pitting PSL against IPL. So we are operating in the same window, so we're challenging ourselves also, and we are telling the world that come and be part of this journey, which is a lot easier in so many ways. पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार मुस्तकबिल पर वसीम अकरम ने कहा कि PSL पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग का सबब है। लीग मकामी टैलेंट को मौके और शायकीन को बेहतरीन तफरीह फराहम करती है। It's a combined effort of everyone, the PCB, the stakeholders, and most importantly, the fans.
And I think, like I said, it's only going to get bigger and bigger. पैनल डिस्कशन में कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने भी शिरकत की। बाबर आजम ने कहा कि PSL नए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। हारिस रऊफ ने कहा कि लीग उनके लिए खेल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुई। साहिबजादा फरहान का कहना था कि PSL के जरिए नौजवान खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टार्स से सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान सुपर लीग का अगला रोड शो अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनक्किद होगा। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स के जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एथलेटिक्स के मुकाबलों की तफसील बताए रहे हैं सैयद जहांगीर अली अपनी इस रिपोर्ट में। 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में 81.81 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित कर दी और गोल्ड मेडल जीत लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि कौमी गेम्स कराची में हो रहे हैं, जिस पर बहुत खुशी है। मेरा फोकस बड़ी थ्रो पर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीतने पर था। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और इसमें मैं गवर्नमेंट सिंध का शुक्रिया अदा करूँगा, POA का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी कोशिश है कि फिलहाल तो अपने आप पे फोकस है, क्योंकि अभी मसला 2028 में दोबारा ओलंपिक्स आ रही है। अगर मैं अपना फोकस दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मतलब हमारी यूथ है, नौजवान है, तो फिर मेरे ख्याल में वो हम टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट समेत मुतादिद मुकाबले हुए जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों ने भरपूर महारत का मुजाहरा किया। खवातीन की 10,000 मीटर रेस में वाबडा की मारिया बीबी ने शानदार रनिंग के साथ सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। मर्दों के 100 मीटर स्प्रिंट में भी वाबडा के रमीज खान ने बर रफ्तार दौड़ के साथ पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि खवातीन 100 मीटर इवेंट में वाबडा ही की फाइका रियाज ने सबसे पहले लाइन अबूर करके गोल्ड मेडल जीत लिया। जबकि लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास 7.68 मीटर की शानदार जंप के साथ गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, 35वीं नेशनल गेम्स के तीसरे रोज सेलिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, स्क्वॉश समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए जिनमें आर्मी और नेवी के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तफसील जानते हैं सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट में। 35वें नेशनल गेम्स में बहिरा अरब में सेलिंग के दिलचस्प मुकाबलों में ऑप्टिमेटिस्ट क्लास ओपन में एयरफोर्स के मोहम्मद सुलेमान ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में KPK की उमैमा इमरान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 35वें नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, टेनिस, टाइकोंडो, टेबल टेनिस, स्विमिंग, स्क्वैश, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, शूटिंग, सेलिंग, रोइंग, कबड्डी, कराटे, जूडो, हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, वुशो, बैडमिंटन और जिम्नास्टिक्स के मुकाबले हुए। 35वें नेशनल गेम्स में हॉकी के मुकाबलों में पंजाब, पाकिस्तान एयरफोर्स और वाबडा ने कामयाबी समेटी। खवातीन के वॉलीबॉल के मुकाबले में पाकिस्तान नेवी ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, जबकि मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने पंजाब को और वाबडा ने बलूचिस्तान को 0-3 से शिकस्त दी। खवातीन के शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल, नेवी ने सिल्वर और HEC ने कांसी का तमगा जीता, जबकि मर्दों के इवेंट में पाकिस्तान नेवी ने सोने, पाक आर्मी ने सिल्वर और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। बास्केटबॉल के मुकाबले में आर्मी ने पुलिस को हराया, जबकि टेबल टेनिस के मुकाबले में पाक आर्मी ने गोल्ड, पाक बहरिया ने सिल्वर, जबकि पाक फिजाइया ने कांसी का तमगा हासिल किया। टाइकोंडो के मुकाबले में आर्मी ने पहली, पंजाब ने दूसरी और सिंध ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रग्बी के मर्दों के मुकाबले में पाक आर्मी और खवातीन के मुकाबलों में वाबडा ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। नेशनल गेम्स में शामिल हर टीम अपनी पूरी महारत और तवानाई के साथ मैदान में उतरी है और हर दस्ता भरपूर अंदाज में जीत की कोशिश में मसरूफ है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, उसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।